So the students, in this question we have given an ellipse, okay, with its foci at 0, 2 and 0, -2, and length of its minor axis as 4, okay, and we have to tell this ellipse passes which points, okay, out of these 4, okay. So see, let's take a general equation of an ellipse, okay, which is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, okay. So to satisfy this point, we have to first find the equation of the ellipse, okay. See, we have given the foci as 0, 2 and 0, -2, okay. So they are on y-axis, okay. So my major axis will be along y-axis, okay, and my minor axis will be along x-axis, okay student, as these 2 points are lying on y-axis, which are foci, okay. So see, from here my foci will be what? Will be 0, plus minus be, okay, foci of this general ellipse, okay. But this is given to us as what? 0, wait a minute, let me write below, okay. This is given as 0, plus minus 2, okay. So if I compare, I will get my BE to be equal to what? To be equal to 2 on comparing this coordinates with general coordinates of the foci, okay, of a ellipse which is having its major axis at y-axis, okay. Also we have given the length of minor axis, okay. We have given the length of minor axis, and the length of minor axis is equal to 2a, okay, of this general ellipse. This is given to us 4 is equal to 2a. So from here I get my a to be 2, okay. From here I get my a to be 2. Now let me square this, okay. If I square this, I will get b square e square to be equal to 4, okay. Now what is eccentricity? E is here eccentricity, okay. This is given by 1 minus a square upon b square. So this will be equal to 4, okay. So see, if I multiply b square with it, I will get b square minus a square will be equal to 4, okay. Now see, a is coming to be 2, so I can write my a square to be 4, okay, as the length of minor axis, which is equal to 2, and this is given as 4. We got our a to be 2, so the a square will be 4. If I substitute the value of a square here, so I will get b square minus 4 will be equal to 4. So I will get my b square to be 8, okay. See, I got the value of b square and a square. So now I can write the equation of my ellipse, okay, from here. So see, so the equation of this ellipse, which is having this foci and length of minor axis as 4, will be x square upon 4 plus y square upon 8 equal to 1, okay. So this will be my ellipse, okay. Now I have to see which points are passing through this ellipse, okay, or this ellipse passing which these points, okay. So for that, this point should satisfy this equation, okay. So let's check one by one, okay. So let's check first this 1, when here x is 1 and y is 2 root 2, okay. So let me substitute in this equation, okay. So this will give me x square will be 1 upon 4 plus this will give me 2 root 2 square is 8 by 8. So this is not equal to 1, okay. So this means this point will not satisfy this equation and this ellipse will not pass through this point, okay. Now let's check the second option. X is 2 and y is root 2, okay. Y is root 2. So if I substitute in this, so my x square, so this will become 4 by 4. Substituting in my equation
equation of ellipse. So this will give me 2 by 8. So again this is greater than 1 and not equal to 1. So this point will also not satisfy. Now let's take the third, which is x is given as 2 and here y is given as 2 root 2. So if I substitute here, this will become 4 by 4 plus 8 by 8. Again this is not equal to 1. This is equal to 2. Okay. So this point will also not satisfy. Now let's check the last option. So my fourth option is, wait a minute, x is given as root 2 and y is given as 2. Okay. So see, x square will give me 2. So 2 by 4 plus y square will give me 4. So it will be 4 by 8 equal to 1. Okay. So this will be 1 by 2 plus again 1 by 2 equal to 1. Okay. So see, 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. So this point is satisfying. The fourth point is satisfying my equation of ellipse, which is x square upon 4 plus y square upon 8 equal to 1. Okay. So my ellipse will be passing through this point. Okay. So hope you understand the solution. Thank you. तो गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन एन इलिप्स विद सेंटर ओरिजिन, इलिप्स जिसका सेंटर कहाँ पे था, ओरिजिन पे था. ठीक है. तो हमारे को कहा हुआ है कि अगर डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, मेजर और माइनस एक्सिस का डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है. ठीक है ना, ये 10 दिया हुआ है हमारे पास. और एक फोकाई हमारे पास दिया हुआ है 0, ये एक फोकाई हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0,5√3. 0,5√3 है, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ये है हमारे पास 0,5√3. ठीक है. तब हमारे पास लेंथ निकालनी है लेटर सेक्टम की. तो हमें लेटर सेक्टम की लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो फोकस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास 0,5√3. ठीक है. और वो किसके इक्वल होता है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें वो बी के इक्वल होता है. ठीक है. तो यानी बी की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल दी हुई है, दी हुई है 5√3 के इक्वल दी हुई है. तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर करूँ दोनों तरफ, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 75. ये 75 हो गया. तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है. ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास 75 के इक्वल. ठीक है. तो यहाँ से मैं अगर सोल्व करूँ तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 75 के इक्वल आ गई. ठीक है. यहाँ से बी माइनस ए और बी प्लस ए, इसकी वैल्यू आ गई 75 के इक्वल. और b माइनस ए कितना दे रखा है, देखो 2b माइनस 2a दे रखा है हमारे पास 10 दिया हुआ है. डिफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनस माइनर एक्सिस, इसका डिफरेंस इतना दिया हुआ है. तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास b प्लस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस ए इक्वल टू 5 डिवाइड हो जाएगा 75 बाय 5. ठीक है. तो यहाँ से आ गया 15. ठीक है. तो 15 आ गया, b प्लस ए की वैल्यू 15 आ गई. और b माइनस ए हमारे पास कितना था, 5. और b प्लस ए कितना था, 15. तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 20. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 10 आ गई. और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई. ठीक है. तो हमारे पास हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम. लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2a स्क्वायर अपॉन b. क्योंकि यहाँ पे आपकी बात जो इलिप्स का जो वो दिया हुआ है फोकस, तो वो वाई एक्सिस की तरफ दिया हुआ है. ठीक है ना. तो यहाँ से ये 2a स्क्वायर अपॉन b आ गई. तो यानी 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 अपॉन b की वैल्यू आ गई 10. सोल्व करेंगे तो आ गया 5. तो यही हमारा इसका आंसर था फ्रेंड्स. थैंक यू. Hello students, our question is, let S and S dash be the foci of the ellipse and B be any one of the extremities of its minor axis. If area of triangle S dash BS is equal to 8 units, then the length of latest rectum of the ellipse is, so मैं एक बार फिगर बना देता हूँ इसकी. So friends, मैंने यहाँ पे ellipse draw कर दिया है. Let's say this x axis is the major axis and y axis is the minor axis. Okay. तो एस एंड एस डैश क्या है, फोकाई है. तो फोकाई कहाँ होते हैं, मेजर एक्सिस पे ही होते हैं. ओके. लेट्स से दिस इज एस एंड दिस इज एस डैश. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम इसकी लेंथ क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड माइनर एक्सिस की बी लेंथ ले लेते हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए ई कॉमा 0. ई क्या है, एसेंट्रिसिटी. एंड एस डैश के क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा 0. ओके. और क्या दे रखा है हमें, बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस. तो माइनर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस. तो इसकी एक्सट्रीमिटी क्या हुई, ये यहाँ पे. ओके. तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया एस डैश बी एस.
ओके, दिस इज बी। ओके, तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया कितना दे रखा है, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है बेसिकली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू 8। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका, आप देखिए यहाँ एस डैश से ओरिजिन तक कितनी लेंथ है, ए ही, देन ओरिजिन से एस तक की कितनी लेंथ है, ए ही, तो बेस कितना हो गया टोटल 2a ही, इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, b, राइट, बिकॉज b पॉइंट क्या है, एक्सट्रीमिटी है, तो हाइट कितनी होगी b इज इक्वल टू 8। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी ई इज इक्वल टू 8। ओके, अब इलिप्स की एसेंट्रिसिटी ई होती क्या है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फिर ए बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये अंडर रूट ए स्क्वायर है, ये क्या होता है बेसिकली ए ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ओके, तो फिर अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0, राइट, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ से बी स्क्वायर की क्या इक्वेशन आ जाएगी, बी स्क्वायर में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी टू द पावर 4 क्या होता है, बेसिकली बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो माइनस ए बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज ये क्या होगा, ए टू द पावर 4 माइनस 4 ए सी, ए क्या है 1 एंड सी क्या है 64, तो 4 इंटू 64 256 अपॉन 2 ए दैट इज 2 इंटू 1 2। ओके, ये आ गई हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें, इलिप्स क्या है, ऐसा एक ही इलिप्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज बी स्क्वायर की भी कितनी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स है ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये कुछ फाइनाइट टाइम हो गई तो बी स्क्वायर की कितनी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए टू द पावर 4 माइनस 256 शुड बी 0, तो ए टू द पावर शुड बी इक्वल टू 256। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ से हमारे पास ए कितना आ गया 4। ओके, एंड बी कितना आ गया, फिर ये क्या हो गई 0 हो गई, तो बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 16, तो 16 अपॉन 2, तो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 8। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से हमने ये दोनों चीजें निकाल ली। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है इलिप्स में, 2b स्क्वायर अपॉन ए दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर क्या है 8 अपॉन ए क्या है 4, तो 4 2 is 8, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई 4 यूनिट्स। Okay, so this is the solution for this question guys. Thanks for watching. Hope you like the video. Thank you. Let the length of the latest rectum of a ellipse with its major axis क्या along the x-axis है and center at origin जिसकी लेंथ क्या है 8 यूनिट है। If the distance between the foci of the ellipse is equal to the length of minor axis, तो कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, यानी which of the following point lie on it, तो कौन सा पॉइंट होगा इनमें से जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। लेट, अभी देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन पे है, तो अगर सेंटर इलिप्स का 0,0 पे और मेजर एक्सिस अगर मेरी एक्स एक्सिस है, सो इट मीन्स वो इलिप्स मेरा कैसा बनेगा, वो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बाय, यानी जो ये यहाँ पे ये लेंथ ए होगी और ये जो बी होगी, ए होगी वो बी से बड़ी होगी। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका ओरिजिन होगा, उसका सेंटर होगा, ठीक है। अब जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होती है 2b स्क्वायर बाय ए और उसकी वैल्यू 8 दी हुई है, हैंस बी स्क्वायर
बाय ए इक्वल टू 4, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई ये हो गई 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि उसके जो डिस्टेंस बिटवीन द फोका, एक f1 होगा यहाँ, एक f2 होगा। ये जो मान ली f2 होगा ये a,0 होगा ये पॉइंट, ये -a,0, दो फोकस होंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी f1 f2, ये होगी 2a। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये किसके इक्वल दी हुई है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस ये वाली है, तो ये जो टोटल लेंथ कितनी है 2b, सो ये 2b के इक्वल है। तो हैंस ए की जो वैल्यू होगी ये बी के इक्वल होगी। दोनों का अगर स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी क्या होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, हैंस ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है, और बी स्क्वायर यहाँ से क्या था 4a, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4a, हैंस ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। ए की वैल्यू जैसे ही 8 आई तो बी की वैल्यू बी स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 8, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 32। ठीक है, तो मेरा जो एलिप्स हैंस यहाँ से जो एलिप्स बन गया एक्स स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 32 इक्वल टू 1। अब ये मेरा एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब इस वाले एलिप्स में बताना है सेटिस्फाई करके कि कौन सा पॉइंट होगा जो इस पर लाई कर रहा होगा, 4√2, 2√2, 4√3। अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएं तो ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है 4√3, 2√2। जैसे अगर x की वैल्यू डालूंगा तो 16 इंटू 3 अपॉन 64 प्लस y की वैल्यू डालूंगा तो 8/32। सो ये कितना आएगा 3/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 1 आएगा। तो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा। तो हेंस आंसर हो गया 2। देखो क्या देखा, एक पॉइंट P दे रखा है x, y, एक पॉइंट F1 दे रखा 3,0 और पॉइंट F2 दे रखा -3,0, और एक इक्वेशन दी है हमें एलिप्स की 16x² + 25y² = 400। तो Pf1 और Pf2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इक्वेशन एलिप्स की क्या है, हम लोग 400 डिवाइड कर दूंगा मैं दोनों तरफ, तो कितना जाएगा x²/25 प्लस y²/16 = 1। तो मेरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेरी इतनी आ जाएगी। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 25 दिख रही है मेरे को, सॉरी हाँ a स्क्वायर की 25 वैल्यू है और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है। तो ऐसे इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, e स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1 माइनस 16/25। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई एलिप्स की 3/5। तो इसके फोकस कितने हो जाएंगे, फोकाई कितने हो जाएंगे, फोकाई की वैल्यू होती है AE,0, दो फोकस होते हैं AE,0 और -AE,0। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो फोकस कितने जाएंगे इसके 3 इंटू 3/5 मतलब 3,0 और -3,0। तो इसका क्या मतलब है, जो F1 F2 पॉइंट थे वो हमारे एलिप्स के फोकाई हैं। तो ये F1 पॉइंट था और ये F2 पॉइंट है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है Pf1 प्लस Pf2 की वैल्यू पूछी गई थी हम लोगों से। ठीक है, तो देखो अगर कोई एलिप्स है ये और उसके दो फोकस हैं, यहाँ पे F1 है और F2 है और कोई एक रैंडम पॉइंट है P, तो हमेशा एलिप्स की डेफिनेशन से ये Pf1 प्लस Pf2 हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो P चाहे मैं कहीं भी ले लूँ वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ Pxy का यहाँ मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है डिस्टेंस कितना है, ये 5,0 है। तो यहाँ से Pf1 प्लस Pf2 कितना हो जाएगा, Pf1 की वैल्यू कितनी होती है, ये कितना है A प्लस AE होती है। ठीक है, और प्लस Pf2 की वैल्यू कितनी होती है A माइनस AE, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 2A। तो 2A की वैल्यू कितनी आती है 10। तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी Pf1 प्लस Pf2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।